Our TV dramas have become a cultural touchstone, becoming one of the few entertainment mediums that has a reach to every kind of Pakistani from all walks of life. We have gathered today with renowned personalities to discuss the landscape of the Pakistani TV drama industry. But first, before we begin, we'd like to introduce the moderator for this panel. The man with the most aesthetic and stare-worthy posters in his office, जिनके बारे में हम जब भी पूछेंगे कहाँ से लिए, बस एक ही जवाब मिलता है, मलेशिया से. Let's welcome on stage the teacher जिनके wavy locks का राज जानने के लिए हम सब हैं बेताब. Our very own Sir Hussain Kamil. Next, we've got the chirpy, happy-go-lucky actress who lights up our screens whenever she comes on. Oh, I know who you're talking about. She has blessed us with amazing performances over the years, such as Gentleman, Tere Bin, Bakhtavar, and the feature film Nayab. Let's give a warm welcome to the warmest person ever, Dyumna Zaidi. Alongside her, we've got the icon who has been working in our drama industry since the 1980s. He has wowed us in a bunch of PTV classics like Jang Loose and Ilzam, all the way to Burns Road ke Romeo and Juliet. The one and only, our favorite drama dad, Shabbir Jan. But of course, कोई भी drama अपने director के बगैर complete तो होता नहीं है. इसलिए let's meet the man जिनके dramas उनकी captivating storytelling की वजह से viral हैं. Any guesses? Chalo, let's name some of his dramas. Sanja, Baghi, Ishq Zeh Naseeb, and Gule Rana are all among his famous works. He continues to make waves in the drama industry, and those waves aren't stopping anytime soon. It's our pleasure to welcome the director जिन्होंने हमारी rom-com fantasies को भरपूर तरीके से पूरा किया है. Let's welcome the man behind Ishq Murshid, Farooq Rind. Let us also call on the Director of Programming and Strategy at Green Entertainment with past leadership experience at ARY Digital Network and Hum TV. His former role as the senior producer and director at Hum TV saw him shaping narratives that mirrored Pakistan's cultural and social nuances, specifically in the golden era of Pakistani dramas in the late 90s and early 2000s. So ladies and gentlemen, please give a warm welcome to Raza Musavi. अच्छा, if you're a sucker for Pakistani TV dramas, तो Big Bang Entertainment का नाम तो लाजमी सुना होगा. कोई अच्छा ड्रामा हो, सोशल इश्यूज के बारे में हो, या ऑडियंस को स्क्रीन से हुक कर रहा हो, ठीक है? It's pretty evident कि Big Bang is the because. Let's call on the producer behind Dunk, Ishqiya, Meri Guriya, and Aisi Hai Tanhai, the co-owner of Big Bang, Dr. Ali Kazmi. Before we begin, we would like to welcome our chief guest, who is the director of the Culture Center of the Islamic Republic of Iran in Karachi, and a member of the Theatre Association with wonderful experience in film and acting, Dr. Talebi Nia. Without further ado, we're going to pass on the mic to Sir Hussain Kamil. Thank you. Thank you. Hello. Ji, Assalamu alaikum. Welcome to the panel. We have some very distinguished guests. इससे पहले कि हम पैनल और डिस्कशन पे जाएं, मैं अपनी थीम के बारे में, जो ZMF की थीम है, उसके बारे में कुछ कहना चाहूँगा. बेसिकली इट्स एम्पलीफाइंग द अनहर्ड. कुछ वो आवाज़ें, और उसी की मुनासबत से हमने ये पैनल भी डिसाइड किया कि ऐसी आवाज़ें, ऐसे मौजू और ऐसी चीज़ें जो शायद खो गई हैं या खोने वाली हैं, या हम उसको दोबारा डिस्कवर कर रहे हैं. तो हमारे जो पैनलिस्ट हैं, हम उनसे बात भी करेंगे और उनकी राय भी लेंगे. कुछ टॉपिक्स और कुछ सवालात थोड़े हार्ड होंगे, बिकॉज द ड्रामा इंडस्ट्री इज़
known to be a reflection of our society, but at the same time there are things that are happening which a lot of students, क्योंकि ये academia है तो a lot of students have issues, let's call it issues. तो हमारा जो बुनियादी मकसद है इस फेस्टिवल से वो एक शनाख्त डिस्कवर करना है कि एक शनाख्त क्या है. एक स्टूडेंट जो हमारे यूनिवर्सिटी से फिल्म पढ़ के निकलता है उसको एक बहुत बड़ा गैप मिलता है इंडस्ट्री में, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में जाना चाहे. हम डायरेक्टर्स बना रहे हैं, स्क्रीन राइटर्स तैयार कर रहे हैं, हम आर्ट डायरेक्टर्स और साउंड डिज़ाइनर्स तैयार कर रहे हैं, लेकिन मसला हर जगह आ जाता है. तो क्योंकि हमारे पास टीवी चैनल से लेके फिल्म डायरेक्टर्स, टीवी डायरेक्टर्स से लेके अदाकार तक मौजूद हैं और प्रोड्यूसर्स भी हैं, तो हम ये सवाल हर तरफ करना चाहेंगे. तो लेट्स स्टार्ट विद दैट एंड आई वुड लाइक टू हेयर ऑल ऑफ यू फर्स्ट एंड योर ओपिनियंस ऑन द फैक्ट कि आप क्योंकि एक ऐसी इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं जो पाकिस्तान में बहुत पहले से चल रही है, और हम अब जैसे PTV फ्लिक्स नाम की ऐप्स आ गई हैं और बच्चों के पास बहुत ज़्यादा एक्सेस है टू द थिंग्स दैट आर आउट देयर एंड दैट वर डन लेट्स से 50 years ago और 40 years ago. तो आपको कितना फील होता है कि अगर कोई नया बच्चा जो यूनिवर्सिटी से 6 महीने पहले निकला है, जब वो आपके पास आता है एज एन इंटर्न, as a AD, as a assistant art director, how do you tackle that? Do you find that gap in the industry कि आपको लगता है कि ये सही तैयार नहीं है, या आपको ये लगता है कि आप अभी रेडी नहीं हैं उनको लेने के लिए? तो how do you go about that? Let's start from you, sir. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन. देखें जी, मुझसे अगर पूछें तो भले पुराने ड्रामे, क्योंकि मैं उस एज से हूँ जिन्होंने पुराने ड्रामे देखे हुए हैं और आज ड्रामे बनाए हैं, तो मैं डेफिनेटली आई विल प्रोटेक्ट माय टुडेज़ ड्रामा इन दैट सेंस कि जो आज की कंपटीशन है उसमें हम जहाँ स्टैंड कर रहे हैं ग्लोबली, वो इन वसाइल के बाद बहुत कुछ है. ठीक है, कुछ चीज़ें जिसमें हम लेक करते हैं, कहीं पे कोई वल्गरिटी चीज़ें होती हैं जो हर जगह पे हो रही हैं. कुछ प्रॉब्लम्स देखें इसलिए है कि देखने वालों को वो चीज़ें चाहिए, इसलिए हम बना रहे हैं. प्रॉब्लम ये है, और उसके साथ साथ हम अपने सोशली काम भी कर रहे होते हैं. लाइकवाइज के कोई भी मैसेज देना हो. आई फील प्राउड, बिग बैंग ने एक मेरी गुड़िया ड्रामा बनाया जिसमें वो चाइल्ड उस पे था, तो उस पे हमने एंड में उस बंदे को सरेआम फांसी दिलवाई. हम चाह रहे थे कि सब लोग निकलें और कहें कि ये सज़ा होनी चाहिए. ये हमने अपना फ़र्ज़ निभाया, हम इतना कर सकते हैं. इसके बाद डेफिनेटली एक पावर जो है आप लोगों के पास है, यूथ के पास पावर है. आप लोग जब तक साथ नहीं देंगे तो शायद हम सिर्फ बता सकेंगे लेकिन कुछ कर नहीं पाएंगे. तो आगे आप शबीर भाई बताएंगे. मैं क्या बताऊंगा. अस्सलाम वालेकुम. द प्लेजर. मैं शकरन जैदी साहब का मशहूर हूँ. फजर रज़ा जिसने मुझे धक्का दिया था, मैं उनकी भी बहुत मशहूर हूँ. आप लोगों का भी, आप लोग यहाँ बैठे हैं और हमारी गुफ्तगू सुनने की कोशिश कर रहे हैं. देखिए, ये कोई छोटा सा मसला नहीं है और ना ही कोई बहुत बड़ा मसला. एक बीच की लाइन है, इसको हमने देखना है. सिर्फ पहले का ड्रामा, आपका ड्रामा, तो आप अपने आप को देख लीजिए ना. जब आप इतने तो कैसे थे और जब आप बड़े हुए तो कैसे हो गए. तो हर चीज़ में एक तगय्युर है, रद्दबदल होता है. काम में भी रद्दबदल होता है, स्क्रिप्ट में भी रद्दबदल होता है, लोगों में भी. आज मैं जहाँ हूँ कल कोई और था. ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर था. तो ये वक्त चलता रहता है. तो हमें वक्त से सीखना है. अब जो लोग, आप लोग आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं बताना चाह रहा हूँ, जो सवाल किया था, कि आप वो चीज़ पढ़ाइए जो बाहर है, जो बाहर होती है, जो मौजूद है, जहाँ पे आप जाके आराम से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने आप को बता सकते हैं कि जी मैं ये पढ़कर आया हूँ और मैं इसके ऊपर काम करना चाहता हूँ. ये कोई सिखाने वाला काम नहीं है, ये कोई लेथ मशीन का काम नहीं है कि आइए मैं आपको बताऊँ कि ऐसे होता है. ये एक एहसास है. जो भी काम है हमारा फ़नून लतीफ़ा का, ये एक एहसास है. इसके 4 मीडियम हैं, फिल्म, टेलीविज़न, स्टेज, रेडियो. तो इनकी अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है. मैं माजरत के साथ, यहाँ एक बहुत बड़ा इदारा है नापा के नाम से,
वहाँ 3 साल के बच्चों को कोर्स कराया जा रहा है, और वो जो कोर्स कराया जा रहा है वो थिएटर का कोर्स कराया जा रहा है, जो थिएटर जो हमारे यहाँ नहीं होता। बच्चा 3 साल पढ़ के थिएटर जा रहा है तो उसको वहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा है ऐसा ख़ास रिस्पॉन्स। तो टेलीविज़न इस वक्त एक ख़ास मीडियम है हमारे यहाँ, देखा जा रहा है, और उसकी देखने की तो बड़ी आसानियाँ भी हो गई हैं काफ़ी। अब तो इकट्ठा बैठ के देख लो 4 घंटे में यूट्यूब पर जाके जो देखना है आपने एक साथ। तो मकसद मेरा कहने का ये कि पढ़ाई है वो पढ़ाई है जो बाहर है, ताकि बच्चा जो भी यहाँ से पढ़ के निकले तो उसको प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। जब तक उसको प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा तो वो कैसे अपनी कारकर्दगी दिखा सकेगा। और जहाँ तक हमारी बात है तो अब इस बात पे मेरे ख्याल में पर्दे डालते तो अच्छा है। एक वक्त है गुजर गया, आपने कोशिश की है, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन अब आप तक आती है हमारी। हमें आपसे उम्मीद है, आप हमसे ज़्यादा बेहतर पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, एक अच्छी दुनिया देख रहे हैं, बल्कि एक मुट्ठी में समाई हुई दुनिया देख रहे हैं आप। हम जिस वक्त आए थे तो उस वक्त सिवाय एक स्क्रीन के दूसरी कोई स्क्रीन नहीं थी, पीटीवी, दैट्स इट, और कुछ नहीं था। वहीं काम मिलना था, वहीं नहीं मिलना था। तो ये भी एक लंबी कहानी है, किसी वक्त और कोई प्रोग्राम होगा तो मैं ज़रूर सुनाऊंगा, आप लोग बहुत एंजॉय करेंगे। तो मकसद सिर्फ इस बात को मैं कंक्लूजन इस तरह करूँगा कि आप वो पढ़ाइए इंस्टीट्यूट में जो बच्चों को बाहर मिले करने को, उसके ऊपर प्रैक्टिस करने को मिले। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो सकलैन जैदी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और ज़ेविस्ट यूनिवर्सिटी में मेरा पहली दफ़ा आना हुआ और इस पैनल डिस्कशन का हिस्सा हूँ, इसकी मुझे बहुत बहुत खुशी है। कमिंग बैक टू हुसैन साहब ने जो सवाल किया, आई टोटली एग्री विद शबीर सर, बड़ा उन्होंने बेहतरीन जवाब दिया है इसका। जब स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं इंटर्न्स के तौर पे, तो मुझे ऐसा लगता है कि जब आप लोग पढ़ रहे होते हैं, जब हम स्टूडेंट लाइफ में होते हैं, तो हम बहुत बहुत ड्रीम्स देखते हैं। हम सबसे पहले उरूज पे जाते हैं, जो पूरा हाईएस्ट पॉइंट होता है ना, हम उसकी तरफ देखते हैं, जबकि उसके नीचे जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है। और हमारे ड्रामा इंडस्ट्री में हमारे पास रिसोर्सेज बहुत कम हैं, लेकिन मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि एक वाहिद मीडियम है जो कि इंटरनेशनली लोग अब इसे 10 में से कोई एक ड्रामा इंटरनेशनली ऐसा क्लिक करता है कि वो 20-22 कंट्रीज़ में ट्रेंड भी करता है। तो इस बात की तो मुझे यकीनन खुशी है, और बाकी जो और कंटेंट बन रहा है उसके ऊपर हम साथ साथ बात करेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स का मुझे यहाँ तक होता है कि मुझे ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल फाइनल रिज़ल्ट को लेकर के अपने दिल में आते हैं और अपने दिमाग में आते हैं, जबकि जो नीचे है वो बहुत स्ट्रगल है। मैंने भी जब एक्टिंग 12 साल पहले शुरू की थी तो मेरे ख़्याल से मैंने बहुत स्ट्रगल देखी। आज के स्टूडेंट्स आते हैं, उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने आई डोंट नो कितने साल की ग्रेजुएशन 4 साल की होती होगी, उनको ऐसा लगता है कि 4 साल में सब कुछ कंप्लीट उन्होंने पढ़ लिया है, जबकि तब शुरू स्क्रैच से होता है काम। तो मैं तो हमेशा यंगस्टर्स को बहुत वेलकम करना चाहती हूँ, और हमेशा हम अपनी इंडस्ट्री में ये जो बच्चे पढ़ लिख कर आ रहे हैं, ये यकीनन हमारे लिए बहुत इम्प्रूवमेंट का बायस बनेंगे आगे आने वाले फ्यूचर में। और जब मैंने शुरू किया था काम, तब तो बहुत कम ये कॉलेजेस में पढ़ाया जाता था फिल्म मीडिया, लेकिन अब नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने ज़्यादा हैं, पूरा डिपार्टमेंट है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये हमारी ड्रामा इंडस्ट्री और फिल्म इंडस्ट्री में बहुत बेहतरीन तरीके से ऐड ऑन करने वाला है। लेकिन उसके लिए तमाम स्टूडेंट्स और बच्चे बच्चियाँ वो बहुत शदीद स्ट्रगल, मेहनत बर्दाश्त करने के लिए अपने आप को रेडी रखें, क्योंकि कोई भी चीज़ जो है वो आसान नहीं है। बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, जिसमें चैनल है, रेटिंग्स हैं, नंबर है, प्रोड्यूसर हैं, राइटर हैं। सो हर चीज़ हमें हमारी मर्ज़ी की नहीं मिल सकती, तो उसी में एडजस्ट करना पड़ता है। बट ये कि हमेशा ये सारे यंगस्टर्स जो हैं वेलकम हैं हमारी तरफ से इस फील्ड में, क्योंकि हमेशा तालीम जो है वो बहुत ही बेहतरीन ऐड ऑन करती है किसी भी इदारे में। थैंक यू।
अच्छा, पहले तो मैं भी थैंक यू सर आपका कहूँगा, क्योंकि नहीं कहा तो मुझे लगता कि ये लोग होंगे, मैं नहीं होऊंगा फिर। तो अच्छा, अब पुराने ड्रामे अगर मैं कहूँ तो देखा जाए तो सब्जेक्ट वही हैं जो कि हसीना मुइन के ड्रामे हैं या अमजद सलाम अमजद के, हम उनसे निकले भी नहीं और शायद निकल भी नहीं सकते, क्योंकि हम बात तो करते हैं ड्रामे की लेकिन घूम फिर के वही सब जगह आते हैं। अच्छा, मेरा स्टार्ट बेसिकली शॉर्ट फिल्म से है। शॉर्ट फिल्म में मुझे जितना मज़ा आया वो ड्रामे में कभी भी सीरियल में नहीं आया। मुझे तो 10 साल लगे एक्सेप्ट करने के सीरियल करनी चाहिए। दानी किया था 2005 में, जो 6 में मैंने कारा में बेस्ट फिल्म का अवार्ड लिया था और 37 कंट्री। तो मैं समझा बस यही दुनिया है, तो सीरियल तो मुझे करनी नहीं है क्योंकि बहू सास ये ड्रामे नहीं करने, लेकिन करने पड़े किचन के लिए। और फिर जब हम देखते हैं नेटफ्लिक्स और ये तो वो फिर आते हैं वही स्क्रिप्ट आते हैं और हम उससे निकल नहीं पाते। तो ड्रामे हमने भी जो सीखा वो उन्हीं ड्रामों से सीखा जो पुराने पीटीवी के ड्रामे थे, और जैसे सर का ड्रामा जांगलूस, और ये वही याद है मुझे। बाकी मुझे सच्ची बताऊं, मैंने कोई 25 साल से एक ड्रामा नहीं देखा। 25 साल से, मैं अगर ईमानदारी से बात करूं अपनी, तो मैंने बस फिल्में देखी हैं बिमल राय की, सत्यजीत राय की, देखा जाए तो ईरानी मूवीज़, माजिद मस्जिदी मेरा फेवरेट, कोई फिल्म उसकी मैंने नहीं छोड़ी, जाफर पनाही। अच्छा, मैं उधर चला गया ड्रामे के बजाय। तो हमारे पास सब्जेक्ट जो है ना वो महदूद हैं। अब इसमें इश्क मुर्शिद में अगर देखा जाए तो कुछ अगर अलग से कुछ कहना चाहा तो सेंसर इतना। अच्छा, मैं खुद सेंसर में हूँ, लेकिन आप सोचें मैंने खुद अपनी जब फिल्म तो मुझे जुमले कटवाने पड़े, काटने पड़े, तो फिर समझ में आई कि हम क्या कर सकते हैं, कुछ अलग से वही ड्रामे करें सास बहू के। अच्छा, मैंने अगर ज़्यादा बोलने लगा तो मेरे ख्याल में 1 घंटा यहीं पे हो जाएगा, तो मैं ये जो है ना रज़ा को देना चाहूँ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, जैदी साहब एंड ज़ैबिस एंड हुसैन। अच्छा, आई वुड लाइक टू से कि जो हुसैन ने बात की है कि न्यू स्टूडेंट्स जो भी निकल के आते हैं उनको चांस नहीं मिलता, उस तरह से एग्जैक्टली यही आप बोल रहे थे। आई स्टार्टेड माई करियर 23 ईयर्स बैक। इंडस विजन वॉज द फर्स्ट प्राइवेट चैनल जिससे मैंने स्टार्ट किया। आई वॉज 17 एट दैट टाइम। सो उसमें एग्जैक्टली मैं भी बहुत सारे स्कूल्स देख रहा था। उस टाइम कोई फिल्म स्कूल्स नहीं होते थे, कुछ भी नहीं होता था। सो जो भी किया हमने, हमारी लर्निंग सारी इंडस विजन से थी कि उस टाइम दे यूज़ टू थ्रो अस इन कि आप जाएं और ये शो बनाएं और ये कर दें। सो हम एडिटिंग भी खुद करते थे, डायरेक्शन भी खुद करते थे, स्क्रिप्ट्स भी खुद लिखते थे। सो इट्स ऑलवेज़ अ हार्ड वर्क एंड हमने ग्रास रूट लेवल से स्टार्ट किया है। अब तो माशाल्लाह से दे आर लकी कि यहाँ पे हैं, स्कूल हैं, फिल्म स्कूल्स हैं, एंड बेसिक चीज़ें जो होती हैं वो ऑब्वियसली आप उनको सिखा देते हैं, बट प्रैक्टिकल लाइफ में जब वो आते हैं और शूट में जो डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, चैनल से जो चीज़ें अप्रूव करानी होती हैं, वो एक सर्टन वे में काम होता है। वो इस तरह नहीं हो सकता कि वो स्टूडेंट निकले और वो एक फ़िल्म बनाए और वो हिट हो जाए। देयर इज़ ऑलवेज़ अ वे, देयर इज़ ऑलवेज़ अ चैनल जिसके थ्रू जाना पड़ता है। और हम बड़े फोकस होते हैं कि हमारी टारगेट ऑडियंस क्या है। हमें एग्जैक्टली पता होता है कि एक मैसेज में अगर एक वुमन है तो वो क्या देख रही हैं, किस टाइम देख रही हैं, क्या एग्जैक्टली जॉनराज हैं जो हमें टच करने। देयर आर ओनली 7 प्लॉट्स, उसी के राउंड स्टोरी घूमती है, उसी के राउंड स्क्रिप्ट्स बनती हैं, और उसमें ऑब्वियसली आपका फेयर होता है, उसमें फैंटेसी होती है। जो ये देखना चाहती हैं ये वो लोग देख रहे होते हैं जो मे बी घर से इतना बाहर नहीं निकलते। दे आर हाउस वाइफ्स। ऑब्वियसली जो वर्किंग वुमेन है, जो मर्द हजरात काम कर रहे हैं, उनको इतना टाइम नहीं मिलता कि वो देखें बैठ के ड्रामाज। वो हाँ यूट्यूब पे देख लेते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई है। आई वुड से कि अब ड्रामा उस तरह से नहीं बन रहा जिस तरह से पहले बनता था। आई मीन प्लॉट्स वही हैं बट उसमें प्रोडक्शन वैल्यू बहुत ऐड हो गई हैं। ड्रामाज जिन प्राइस पे पहले बनते थे उससे बहुत ज़्यादा में अब बन रहे हैं। डीपीज़ हमारे पास पढ़े लिखे आ गए हैं, बहुत डायरेक्टर्स हमारे पास पढ़े लिखे आ गए हैं।
बहुत सारे हमारे पास एक्टर्स हैं जो जो दे आर फ्रॉम गुड बैकग्राउंड, उनको पता है एग्जैक्टली क्या करना है, बट एग्जैक्टली जो आप पढ़ के आते हो वो आप वहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। उसके लिए यू हैव टू गो थ्रू अ रन, और वो सारी चीज़ें आपको सीखनी होती हैं, फिर एक चीज़ बनती है जिसमें ऑब्वियसली चैनल ने पूरी मेहनत की हुई होती है, उनको एग्जैक्टली टारगेट ऑडियंस पता होती है कि किनको क्या केटर करना है। आई थिंक जी गर्मी बहुत है, गर्म सवाल न कीजिएगा। नहीं सब उन्होंने आइस क्यूब में रखे हुए सवाल। सही है। रज़ा ने बहुत एक इंटरेस्टिंग बात की कि स्क्रिप्ट चेंज हो गई हैं, कहानियाँ बदल गई हैं। यकीनन जब आपका माशरा चेंज होता है, और पाकिस्तानी ड्रामा लाइक आई सेड वाज रिफ्लेक्शन ऑफ द सोसाइटी, राइट। तो जब आपका माशरा चेंज होता है तो आपकी कहानियाँ चेंज होनी चाहिए। अब उसी से एक सवाल मेरे जहन में ये आता है, क्योंकि हम अगेन एंड ऑफ द डे हम एक फ़िल्म यूनिवर्सिटी हैं और एक हमारा प्रोग्राम चलता है जो फिल्म मेकर्स तैयार करता है। यहाँ पे हम कोई भी टेक्निकल फिल्म कोर्स पढ़ाते हैं तो उसमें एक टेक्निकलिटी की फ़्लो है, डायरेक्शन की, लाइटिंग की, स्क्रीन प्ले की। अब देखा उमूमन ये गया है इंडस्ट्री में, जब हमारे बच्चे जाते हैं करने, कि एक फिक्स स्टैंडर्ड है, क्योंकि हमारा टॉपिक है कल और आज। तो मेरा सवाल आपसे ये है, स्पेशली फॉर द डायरेक्टर्स हु हैव बीन वर्किंग एंड प्रोड्यूसर्स हु मेक थिंग्स हैपन, कि ये जो एक 12 सीन का हिसाब है कि हमने दिन के 12 सीन करने हैं, वो अगर कोई फिल्म स्टूडेंट उससे रेडी नहीं है, उस चीज़ से लेके, तो वो कल के 12 सीन ही पूरे नहीं कर सका तो आज के 12 सीन कैसे पूरे करेगा? हाउ डू यू टैकल दैट? बिकॉज अ लॉट ऑफ people who've actually worked in the industry have that problem, right? Especially जो आपने जिक्र किया कि ये डायरेक्टर्स हैं जिस तरह के। थोड़ा सा ऐड कर दूं। जी जी प्लीज। हम नए लोगों को तो 12 सीन देते भी नहीं दिन के, तो उसको एक दिन में प्रॉब्लम नहीं होती कोई। नए लोग 2-3 सीन करके घर चले जाते हैं, तो उनको दूसरे दिन की फिक्र नहीं होती। 12 सीन हमारे ज़िम्मे होते हैं, जो रेगुलर एक्टर्स होते हैं उनके ज़िम्मे 10-10, 12-12 सीन होते हैं कि वो करें। नए लोगों पे वैसे भी इतना प्रेशर नहीं डाला जाता। ये जो कॉन्सेप्ट है ये गलत है कि नए लोगों को 12-12 सीन कराए जाएं, ये ऐसा नहीं है। सर आपको कास्ट मैं अब करूँगा। हाँ बिल्कुल सही। ये प्रोड्यूसर इसका शायद जवाब मुझे ही देना पड़ेगा, क्योंकि सारी पहले तो मैं सकलेन साहब थैंक यू सो मच, मैं पहले नहीं कह सका, आपकी वजह से सब देखें जी। ये फ़न की खिदमत तो है, लेकिन बिज़नेस तो है। हर किसी के घर में बच्चे हैं, उनको खाना तो खिलाना है। अच्छा, जो ड्रामा बनता है, जितनी फिजिबिलिटी में अगर मैं अपने वो 5% 10% इस शौक़ पे ख़त्म कर दूं कि मुझे आज चलो एक सीन हो जाए, कोई मसला नहीं है, टोटल कॉस्ट क्या आ रही है, इन्फ्लेशन क्या है, एट द एंड ऑफ द डे बिज़नेस तो है। सब हम लोग अगर करते हैं, चाहे एक्टर है, डायरेक्टर है या राइटर है, जो भी आता है वो एट द एंड ऑफ द डे पैसे के लिए है। और मैं उसको, मेरा काम होता है कि टाइमली उसको पैसे दूं, ये ना हो कि उसको अपने पैसों के लिए मुझे 10 दफ़ा फ़ोन करना पड़े। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर इसमें मैं कहीं कोताही करता हूँ तो ये प्रोड्यूसर का फॉल्ट है। जहाँ नहीं, जहाँ पे ऐसा नहीं है। मेरे पास एक ड्रामा हमने बनाया था मुकाबिल के नाम से, ज़फ़र मिराज साहब का लिखा हुआ था, जिसमें मेरा डायरेक्टर पूरे दिन में एक सीन करता था। बट हमें सीन की क्वांटिटी नहीं, मतलब क्वालिटी के साथ उसका ड्यूरेशन चाहिए होता है। हर प्रोड्यूसर चाहता है कि मुझे डेली का कम से कम 15 मिनट का ड्यूरेशन मिल जाए। वो सीन के हिसाब से नहीं है। अगर वो एक किसी ने कट करके यहाँ से कर दिया, वो ड्यूरेशन मेरा 5 मिनट निकलता है, तो वो मुझे इतनी फिजिबिलिटी नहीं बनती। सिर्फ इसकी रीज़न ये है कि मेरा भी बिजनेस है, तो वो सीखना पड़ेगा, जिसको भी आना पड़ेगा। देखिए मेरे पास बच्चे आपके जितने भी टेक्निकल साइड पे हैं, डायरेक्शन साइड पे हैं, राइटिंग साइड पे, मोस्ट वेलकम। एक्टर नहीं आ रहे मेरे पास, मैं कह रहा हूँ एक्टर नहीं आ रहे। मैंने अभी सकलेन साहब से भी कह रहा था कि आप लोगों में से मेरे पास एक्टिंग करने क्यों नहीं आ रहे। मुझे आज जो भी मिल रहा है वो इस्लामाबाद से मिल रहा है, टैलेंट इन एक्टिंग। जो भी पढ़े लिखे अच्छे लड़के लड़कियां हैं वो इस्लामाबाद से आ रहे हैं। हमारे कराची में वो रुझान नहीं है। मैं चाह रहा हूँ वो लड़के बच्चे हमारे पास आएँ, आगे बढ़ें, बिकॉज़ हमारे पास वो वाकई गलती, मतलब बहुत कमी है। इसलिए क्या करते हैं कि हर
शबीर भाई को एक सेट से दूसरे सेट पे भेज देने, शबीर भाई आप ही ने पूरा करना होता है, तो बस ये है। हाँ हेलो या एज फार एज दी 12 सीन्स आर कंसर्न, ऐसा अब होता नहीं है, हम इतना प्रेशराइज नहीं करते, बट ऑब्वियसली चैनल का एक प्रेशर प्रोड्यूसर पे होता है, प्रोडक्शन हाउस पे होता है, एक सर्टन बजट होता है हर स्लॉट का, 7 o'clock का अलग बजट है, 8 o'clock का अलग बजट है, ऑब्वियसली वो उनको मैनेज करना होता है, बट इस तरह से प्रेशराइज नहीं करते कि 12 के 12 सीन होंगे। अभी बहुत सारे ड्रामाज हैं हमारे, हाँ 11:30 कर लेते हैं, तो अब इस तरह नहीं होता, मतलब हमारे उन स्लॉट्स पे हम डिवाइड कर देते हैं चीज़ें, कुछ हमारे सिग्नेचर और प्रोफाइल प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें 5-5 सीन्स भी होते हैं, कुछ हमारे सीन्स होते हैं जिसमें 12-12 सीन्स भी होते हैं, कुछ के 6-6 सीन्स भी होते हैं, और कोई भी स्टूडेंट आई थिंक जब बाहर आ रहा है तो एटलीस्ट उसको 1 या 2 ईयर्स किसी अच्छे डायरेक्टर के साथ या प्रोड्यूसर्स के साथ इंटर्नशिप या एज एन एडी काम करना होगा अगर उसको डायरेक्टर बनना है, बिकॉज वो जंप इन करेगा फ़ौरन और वो 5 सीन भी नहीं कर सकेगा। तो इस तरह ही देयर इज़ अ वे टू डू एवरीथिंग, तो मेरे ख्याल से इसका ये बेस्ट तरीका है कि जो भी आए दे आर मोर देन वेलकम, और इंक्लूडिंग मी, मैं तो बहुत ज़्यादा प्रमोट करता हूँ यंगस्टर्स को, एक्टर्स भी बहुत हैं जिनको मैंने बहुत ज़्यादा प्रमोट किया है, लड़के चैनल से चीज़ें करवाई हैं, डायरेक्टर्स भी इस तरह के हैं बहुत सारे, तो ऑब्वियसली आपको जंप इन नहीं कर सकते, आपको आके थोड़ा कामली काम करना होगा, तो फिर कुछ हो सकता है। अच्छा, ये जो 12-15 सीनों का जी है ना सिलसिला, इसको भी थोड़ा सा क्लियर कर दूंगा। ये बेस करता है कंटेंट पे कि आप क्या कर रहे हैं, क्या कंटेंट पे काम, कुछ कंटेंट ऐसे जो बहुत डिटेल्ड वर्क करना पड़ता है जिनके ऊपर, वहाँ मुश्किल से 4 या 5 या बहुत हो गए तो 6 सीन हो गए। अच्छा, एक हम सिटकॉम कर रहे हैं, नॉर्मल सा सिटकॉम है, एक जगह लाइट हुई है, आ रहे हैं और जा रहे हैं, वहाँ हम 18 सीन भी कर लेते हैं। डिपेंड करता है कि आप किस कंटेंट पे काम कर रहे हैं, क्या एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं आप, तो उसके हिसाब से ये गिनती आ जाती है। वरना पहले एक फैक्ट्रियाँ लगी थी कुछ लोगों की कि वो क्योंकि वो चलना होता था, वो जो भी बना दें वो चल रहा है, अभी भी ऐसा हो रहा है कि वो जो भी बना दें वो चलना तो है, तो वो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिस पे वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते कि जी इसमें तो हमें फटाफट निकाल के 2 सीन, 7 बजे वाला ड्रामा है भाई कर लो यार जल्दी, क्या रखा कौन देख रहा है, ये वाली बातें। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, बहुत खामियां हैं भी हैं लोगों में, चैनल में भी खामियां हैं और भी बहुत सारी जगहों में खामियां हैं। हम आर्टिस्टों की भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, हमें भी 10 काम होते हैं। अपने एक जगह शूट कर रहा था, उनसे मैंने कहा मुझे 2 घंटे की छुट्टी चाहिए, सर्विस जाना है मुझे, तो उनके तो बाल खड़े हो गए। तो ये सब चीज़ें मिलजुल के मैं किसी एक चैनल को या कोई प्रोडक्शन इदारे को या किसी और को मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहराऊँगा, ये हम सारे मिलके इस पर कोई काम नहीं करते। और वो क्यों नहीं करते कि हम सब इंडिविजुअल हैं, किसी को जवाबदेह नहीं है, ये है सबसे बड़ा फ़र्क। अगर हम किसी एक जगह पे आ जाएं, किसी एक जगह जवाबदेह हों सारे लोग, तब जाके शायद कुछ सूरत हाल बने। मेरी मर्ज़ी मैं कर रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा, मैं 100 रुपये में कर रहा हूँ, मैं 50 रुपये में कर रहा हूँ, मेरी मर्ज़ी, जिसने जैसे करना है। तो ये मर्ज़ी के मालिक हैं सारे, तो जहाँ सारे मर्ज़ी के मालिक हों तो वहाँ मर्ज़ी तो कुछ नहीं होती फिर। थैंक यू सर। फैक्ट्री का आई थिंक जो आपने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया फैक्ट्री, वो ऐसा ही कुछ एक ज़माने में था जब मैं ग्रेजुएट हुआ और मैं टीवी चैनल में भी मैंने काम किया, तो मुझे यही अंदाज़ा हुआ कि एक फैक्ट्री है और हमारी शायद वो पेस ना बन सके। और जैसे रज़ा ने कहा कि अब प्रोडक्शन वैल्यू चेंज हो गई, यकीनन जो पहले कैमराज यूज़ होते थे अब वो नहीं होते, उससे बहुत आगे। लेकिन इससे ही हम बात भी आगे बढ़ाएंगे। और एक किस्सा मुझे याद आया कि जब मैं एक टीवी चैनल में काम करता था, हमने बड़ी मेहनत से, मैंने और हमारी एक दोस्त थी, हमने मिलके एक स्क्रीन प्ले तैयार किया टेलीफिल्म का। हमसे मांगा गया, हमें प्रोटोकॉल्स नहीं पता थे, हमने पूरा स्क्रीन प्ले लिख दिया। हम स्क्रीन पे लेके कंटेंट हेड के पास चले गए, उन्होंने कहा ये तो बहुत अच्छा है और ये हम आगे बढ़ा देंगे, बिल्कुल ये तो शूट होना चाहिए। 1 हफ़्ता गुजरा, 2 हफ़्ता गुजरा, हम गए हमारे चैनल हेड के पास, हमने कहा भाई उसका क्या होना है। तो उन्होंने कहा कि एक बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, वो ऑन बोर्ड लिए गए थे आपके प्रोजेक्ट के लिए, लेकिन उन्होंने इसलिए मना कर दिया आपका प्रोजेक्ट क्योंकि इसमें आउटडोर सीन बहुत हैं। तो वो दिन है, आज का दिन है, वो मैं टीवी से थोड़ा खफा हो गया। फिर मैंने फ़िल्म लिखना, मतलब यकीनन मुझे बहुत एक वो था
कि मैं जाऊंगा, और रज़ा के साथ भी मैंने बहुत लंबे अरसे काम किया, एंड ही इज़ एक्चुअली वन ऑफ द इंस्पिरेशंस जिसकी वजह से मैं टीवी को परस्यू करना चाहता था, वो और हमारे नुमान नबी साहब। लेकिन ये एक बड़ा मसला आया, तो क्या एज एन एक्टर स्पेशली सर आप से, क्योंकि मैंने आपके देखे हैं जो भी ड्रामे पहले के अभी के, आउटडोर सीन से क्या इख्तिलाफ है? क्योंकि ये बहुत है कि घर में शूट हो और कैसी लोकेशन हो, क्योंकि ये एक परसेप्शन डेवलप हो गया कि ड्रामा दिखना ऐसा चाहिए। वो एक परसेंटेज होती है, ख़ास तौर पे स्क्रीन की एक खूबसूरती आती है मेरे नज़दीक, मैं समझता हूँ जब हम आउटडोर निकलते हैं तो अब आउटडोर, और यहाँ तक कि पहले का ड्रामा था ना, पहले बहुत आराम से शूट होता था, एक ही कैमरे से जूम इन करके जूम आउट करके। अब तो हर शॉट का लेंस चेंज होता है, लाइट चेंज होती है, 10 चीज़ें होती हैं। अब ज़्यादा मुश्किल काम कर रहे हैं लोग, ज़्यादा टाइम टेकिंग हो रहा है वक्त इसमें। ऐसा नहीं कि पहले से ज़्यादा, अब पहले आसान था, एक कैमरा रख दिया, वही कैमरा इनके जूम पे चला गया, वही कैमरा पूरे मास्टर शॉट में भी चला गया, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। अब वो इसको मुझे इनका क्लोज लाना है तो मुझे लेंस चेंज करना है, मुझे 4 रूम को लेना है दूसरा लेंस चेंज करना है, मुझे इस हॉल का शॉट लेना है तो मुझे फिश आई लगानी पड़ेगी यहाँ पे। तो ये अब ये सूरत हाल है, अब तो और मुश्किलों से काम करना पड़ रहा है। तो दूसरी बात ये कि हम जब आउटडोर वगैरह जाते हैं तो आउटडोर विदाउट रीज़न के मेरी समझ में नहीं आता, रीज़नेबल होना चाहिए। हम जैसे कहीं अगर आप बाहर किसी कंट्री में शूट कर रहे हैं तो आप इंडोर शूट करेंगे तो यार क्यों आए भाई बाहर, आप बाहर मुल्क क्यों आए? अगर आपने अंदर ही शूट करना है तो आप जहाँ आए हैं उसकी जगहों को, उनके जो भी खूबसूरती है उसको दिखाएं, ताकि जो लोग देख रहे हैं तो वो देखें, और उसको इतना ही दिखाइए कि जितना वो अच्छा लगे। बस ये है मेरे नज़दीक। आउटडोर एक, मेरे नज़दीक जब हम ड्रामा देख रहे होते हैं तो आउटडोर आने से एक फ्रेशनेस सी फील होती है। सर काश आप उस वक्त मिल जाते मुझे। चले आप मिल गया, कोई बात नहीं, क्या हुआ है। इसीलिए आपने बुलाया। अच्छा मैं अच्छा चल रहा है ये। आपने आउटडोर जो है वो आपको पता है आउटडोर आर्मी की कब्जे में है, आप समझ रहे हैं? मतलब वो परमिशन लेनी पड़ती है, उधर चले जाओ तो वो आपका सामान उठा के ले जाते हैं। आउटडोर न लिखे। मेरी इतनी ख्वाहिश है सालों से कि मारी में जाके शूट करूं, इतनी सोर्स लगा कि एक मेजर मेरे साथ गया, आपस सुल्ताना ने दिया, ये मेजर है, इसको जगह बताओ। और मैं 2 दिन उसके साथ घूमता रहा, यहाँ पे। उसने कहा इधर भी कर लो, मैंने कहा इधर भी। कहा अच्छा तुमने वो लाइट हाउस देखा है? मैंने कहा सर क्या कह रहे हैं, वहां पे हो सकता है? हाँ। 2 दिन के बाद कहा कि नहीं हो सकता कहीं पर नहीं सकता। तो आउटडोर आप ऐसे न लिखें जो आर्मी के, आप बड़ी बड़ी जगह देखें, अच्छी अच्छी जो जगह जो है ना वो आउटडोर आर्मी के उसमें कंट्रोल में है। इसका मैं एक जवाब दूं कि अगर आप एयरपोर्ट अगर आप एयरपोर्ट लिख रहे हैं तो एयरपोर्ट कितना चार्ज करते हैं पर आवर, मैं कैसे ड्रामा बनाऊंगा? आपने एक एयरपोर्ट के सिर्फ आने का सीन लिख दिया, तो एयरपोर्ट अथॉरिटीज कितना चार्ज कर रहे हैं, पहले तो दे नहीं रहे। सर आप एनिमेटर्स हायर करें हमारे। सर बिल्कुल सही, एग्जैक्टली। तो एक लाइन बस, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। मुझे कहा गया कि इसमें एयरपोर्ट आपने दिखाया लेकिन सीन बस यूं आया और अजीब सा सीन था। तो मैंने कहा आप यकीन करें, मुझे बड़े दिनों के बाद अचानक फोन आया कि 30 मिनट्स उन्होंने दिए हैं। 30 मिनट्स, ठीक है जी। हाँ बस ये इतनी। अच्छा मैं थोड़ा सा ये ऐड ऑन करना चाहती हूँ। एक तो ये कि मैंने जो अपने पहले सवाल में कहा कि बड़े ड्रीम्स देख कर आते हैं स्टूडेंट्स, और जब वो टूटते हैं तो वो उन पे खफा होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर 1000 ड्रीम भी आपके टूटते हैं ना तो कोई बात नहीं। ये प्रोफेशन ऐसा है कि इसमें कोई 12 सीन करवाए, 14 कराए, 5 कराए, जितने भी कराए, ये पैशन का काम है। इसमें सर्दी गर्मी, धूप पसीना, भूख प्यास, वक्त मुझे नहीं लगता कि मैटर करता है किसी भी पैशनेट इंसान के लिए। अगर किसी ने किसी एक लेवल पे पहुंचना है, मेरे बराबर में फारूक साहब बैठे हुए, कोई भी प्रोड्यूसर इनसे 5 सीन ज़्यादा नहीं करा सकता दिन के। ये नहीं वो कह रहे हो कास्ट नहीं, इनसे नहीं करा सकते। ये इस लेवल तक पहुंचे हैं और इन्होंने बहुत मेहनत से काम किया। सर गलत कह रही है, 8 ये 2 सीन, ये तो 1 सीन भी कराते हैं, ये तो 1 सीन भी कराते हैं। हाँ अच्छा, दूसरी बात ये कि आउटडोर तो बहुत खूबसूरत लगता है, बहुत अच्छा। तो मेरे नज़दीक जिस डायरेक्टर ने रिजेक्ट किया होगा वो बड़ा डायरेक्टर होगा ही नहीं सर, ऐसा हो ही नहीं सकता। फाइट कर लेते हैं सब।
और सर उसका बदला हमसे न लीजिएगा। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, एक नहीं है। डिफेंस में शूट नहीं कर सकते आप जी, आउटडोर सीवी पे शूट नहीं कर सकते आप आउटडोर। ठीक है, आप कहीं कराची यूनिवर्सिटी चले जाएं, वो आपको आपके कैमरे में तोड़ के फेंक देंगे सारे। सर कराची हमारा बदसूरत इसी वजह से लगता है कि हम जो बुरी जगह होंगी जहाँ पे कचरा आका यहाँ पे कर सकते हैं। सही। अच्छा, इस बात को आगे लेके चलते हैं और अब क्योंकि कंक्लूजन की तरफ जा रहा है, मेरा जो अब आपसे ये सवाल है वो बेसिकली, क्योंकि अगेन शनाख्त की बात हो रही है और उन वॉइसेस की बात हो रही है, तो एज डायरेक्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स आपके लिए किरदार ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या एक अदाकार? क्योंकि नापा है, जैसे सर आपने बोला, एग्जिस्ट करता है, बहुत अरसे ट्रेन होते हैं और फिर वो 10-10, 20-20 साल काम भी करते हैं, लेकिन जब वो मिलते हैं तो वो फिर स्ट्रगल कर रहे होते हैं। तो ये एक सवाल है कि आप जी 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 प्लीज़। एक लाइन में जवाब दूंगा, ज़्यादा नहीं। मैंने नापा के अगर कास्ट कर ली तो वो 9 बजे स्लाट जाएगी, 8 बजे जाएगी नहीं, तो मैं रिस्क नहीं लूँगा। नहीं ऐसे देखिए, मेरे पास हमेशा हम तो ढूंढ रहे होते हैं कोई ना कोई नया चेहरा मिल जाए, कोई ना कोई, क्योंकि हमारे पास, मैं बार बार कह रहा हूँ कि एक्टरों की बड़ी कमी है। जितने स्लॉट्स चल रहे हैं, फ्रेश स्लॉट्स, उनके हिसाब से एक्टर हमारे पास बहुत कम है। तो नापा के साथ मैंने जितना एक्सपीरियंस किया है वो अपने थिएटर से नहीं निकलते। टीवी और थिएटर की एक्टिंग में बहुत फ़र्क है। वो उनमें शायद इतना जम जाते हैं कि मतलब जब टीवी के सामने भी होते हैं तो बिल्कुल वो थिएटर वाली एक्टिंग, अब थिएटर वाली एक्टिंग शायद टीवी ड्रामे में नहीं चल पा रही। ये बहुत प्रॉब्लम है। उनकी जड़ें इतनी मजबूत की जाती हैं कि वो उससे निकल ही नहीं सकते। वो बोलते भी उसी अंदाज में, एक्टिंग भी उसी अंदाज में कर रहे होते हैं। तो ये मैंने उनमें प्रॉब्लम, उसमें से बड़े अच्छे निकल भी आए हैं, ऐसा नहीं है कि सारे ऐसे हैं। तो जो निकल जाता है, टीवी को समझ जाता है, वही बेस्ट एक्टर है, वही यमुना है, वही शबीर भाई है। बाकी जो हम मतलब उसी में रहता है, फिर वापस अपने नापा में ही चला जाता है। पापा से आए, नापा से तो नहीं आए। अच्छा, एक लाइन, एक और मैंने एक लाइन मेरा तकिया कलाम रख ले। मैंने लास्ट बहुत अरसे के बाद अच्छी फिल्म देखी, लापता जो लेडीज, और उसमें न्यू, अच्छा मेरा है कि इस तरह के आर्टिस्ट आए और मैं अच्छा मैं कभी अगर सच्ची बताऊं एंजॉय करने जाता हूं तो थिएटर जाता हूं, बस। फारूक भाई इज एग्जैक्टली राइट। फारूक भाई का आप जो भी ड्रामा देखेंगे उसमें एक कैरेक्टर आपको ज़रूर निकलेगा। अब ये इश्क मुर्शिद आपने देखा होगा, उसमें से एक कैरेक्टर निकला, हर ड्रामे में निकलता है। अच्छा, जहाँ तक एक्टर एंड स्टार की बात है, इट टोटली डिपेंड्स ऑन द स्क्रिप्ट। कुछ स्क्रिप्ट्स इतनी स्ट्रॉन्ग होती हैं कि उसमें आपको एक्टर ही चाहिए होता है, और कुछ ऐसी होती हैं जिसमें आप स्टार से भी काम चला लेते हैं। उसमें होता यही है, ऑब्वियसली अगर आपने कोई भी नया एक्टर इंट्रोड्यूस करना है तो उसके साथ आपको एक पुराना और एक मैच्योर एक्टर चाहिए होता है, जो उसकी एनर्जी बाउंस ऑफ करती है नए एक्टर में। ऐसा नहीं हो सकता कि आप सारे नए एक्टर्स लेके एक ड्रामा चला दें, वो कोई नहीं देखेगा। सो इस तरह मैंने ऑनेस्टली बहुत लोगों को इंट्रोड्यूस किया है और एग्जैक्टली उनको मैं यही फॉर्मूला बताता हूँ कि इस तरह होगा। उसके लिए मुझे उन बड़े एक्टर्स को भी कन्विंस करना पड़ता है कि प्लीज़ इनके साथ काम करें, फ्यूचर में आप इनको ढूंढ रहे होंगे और ये आपको मिलेंगे नहीं। और एग्जैक्टली ये हुआ है, लोग ढूंढ रहे होते हैं और मिलते नहीं है, क्योंकि पोटेंशियल आपको जज करना होता है। एग्जिबिटर, एज एन एग्जिबिटर हमें ये करना होता है कि हम एक स्क्रिप्ट जब लेते हैं तो फिर हम डिसाइड करते हैं ये किस डायरेक्टर का जॉनरा है, उसका कैरेक्टर स्केच बनता है, फिर हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा एक्टर इसमें सबसे अच्छा कर सकता है एक्टिंग। उसमें बहुत जगह हम यूज़ करते हैं नए एक्टर्स भी, बट उसको बैलेंस करने के लिए, उसको मार्केट में चलाने के लिए, उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए बुक के कवर के साथ अंदर कंटेंट भी होना चाहिए। सो देयर इज़ अ वे। जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर कोई भी नया स्टूडेंट आ रहा है आफ्टर स्टडीज़, वो अगर आता है और वो डायरेक्शन करना चाहता है तो उसको 1 साल एटलीस्ट किसी अच्छे डायरेक्टर के साथ एसोसिएट होना चाहिए। उसी तरह एक्टर भी जो आते हैं उनको थोड़ा टाइम किसी अच्छे एक्टर्स के साथ एक्टिंग करनी चाहिए। बहुत सारे एक्टर्स ऐसे हैं जो अभी बहुत बड़े नाम हैं, वो दिन में 1 सीन करते थे बेचारे और 12-12 सीन वेट करते थे और 2-2 दिन के बाद वापस आते थे वो 1 सीन करने, और अब वो कहीं और हैं और वो भी कैरेक्टर एक्टर हैं। तो कैरेक्टर एक्टर एज सच हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं होते, आप सही बोल रहे हैं। बहुत मुश्किल से उस तरह की स्क्रिप्ट्स आती हैं जिसमें आपको कैरेक्टर एक्टिंग चाहिए होती है। मेनली आपको स्टार चाहिए होते हैं और एक्टर्स चाहिए होते हैं बाद में। थैंक यू। अच्छा,
एक सवाल जो बड़ा ज़रूरी है वो, क्योंकि ऑन द पैनल, क्रॉस द पैनल वी हैव ड्रामाज लाइक डर सी जाती है सिला और बागी, तो ये इस तरह के ड्रामे जो थोड़ा सा कन्वेंशनल जो नैरेटिव्स नहीं थे, ठीक है, वो जो थे, जो अच्छा बुरा वो एक अलग बात है, लेकिन ये एक सर्कल है, ये एक सवाल हमेशा से रहा है कि जब आवाम से पूछा जाता है कि भाई, आवाम कहती है हम इसलिए ड्रामे नहीं देख रहे क्योंकि वो सास बहू का ड्रामा है। जब हम चैनल की तरफ जाते हैं या प्रोडक्शन हाउस की तरफ जाते हैं तो वो कहते हैं कि भाई आवाम यही देखना चाहती है तो हम यही बनाते हैं। अब ये सवाल फिर वहीं कहीं गुम हो जाता है कि मसला है क्या, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि हमारे पास उस तरह के ड्रामे नहीं बन रहे जो आवाम देखना चाहती है, अलग ड्रामे भी बन रहे हैं, वो चल भी रहे हैं हर तरह से। उनकी टीआरपी ले ली जाए या उनकी एक्टर्स को उसके बाद और काम मिलना, अगर इसको आप एक मयार समझते हैं तो वो उस पर भी पूरा उतरते हैं। लेकिन ये एक फ़ैसला आई थिंक इस पैनल के थ्रू आप अगर करना चाहें कि ये मसला है क्या, कि ये सास बहू का ड्रामा आवाम देख रही है इसलिए बनाया जा रहा है, या आप लोगों को लगता है कि वो ज़रूरी है बनाना आज के हिसाब से? जैसे अब आपने देखा होगा बहुत सारे ड्रामे ऐसे हैं जो अभी इनफैक्ट जिस चैनल को मैंने ज्वाइन किया उसमें जो बंदा आता है वो बोलता है हमें डिफरेंट काम करना है। आई मस्ट से ये दिस इज ट्रू, उनको डिफरेंट ही काम करना है। और प्लस पॉइंट मेरे लिए ये है कि मैं टोटली डिपेंडेंट नहीं हूँ एडवर्टाइजर्स पे। मेरी कन्वर्जन यूट्यूब से भी हो रही है और दूसरी जगहों से हो रही है जो मुझे इतना सपोर्ट कर रही है कि मैं वो डिफरेंट जॉनरास बना सकता हूँ। दैट इज़ द ओनली रीज़न आई जॉइन दैम कि वहाँ पे डिफरेंट काम हो रहा है, बट उसमें प्लॉट्स वही हैं, आगे जाके डिफरेंट हो जाती हैं चीज़ें, स्टार्टिंग में डिफरेंट हो जाती हैं, तो आपको आहिस्ते आहिस्ते मनूवरिंग करनी होती है, आप स्विच नहीं कर सकते। और जहाँ तक आप बोल रहे हो कि बिल्कुल ऐसे ही है, लोग बोलते हैं कि हमें ये नहीं देखना, बट वो देखते एग्जैक्टली वही हैं। वो जब नंबर्स की कन्वर्जन होती है तो हमें वो नंबर्स बताते हैं तो कि इन्होंने वही देखा। तो फिर बेसिकली एग्जैक्टली और मेरी वालदा जो हैं वो खुद ड्रामा देख रही होती हैं और ड्रामा देखते देखते बहुत सी गलतियां और नुक्स निकाल रही होती हैं। मैं कहती हूँ आप क्यों देख रही हैं, और फिर आप नेक्स्ट एपिसोड भी देख रही होती हैं। सो दैट्स द फैक्ट कि लोग देख रहे होते हैं, लेकिन 10 में से कोई एक स्क्रिप्ट ऐसा भी निकल आता है जो मुख्तलिफ होता है, जो मुनफरिद होता है। हर तरह की कैटेगरी के लोगों के लिए हर तरह का कैटेगरी का काम भी हो रहा होता तो है। फिर बेसिकली नहीं, एग्जैक्टली आहिस्ते आहिस्ते मनूवरिंग होती है। जैसे हम अगर 8 o'clock के 7 स्लॉट्स है या टोटल मेरे पास 21 स्लॉट्स हैं, तो उसमें से हम 2 या 3 प्रोफाइल प्रोजेक्ट्स करते हैं जो थोड़े डिफरेंट होते हैं, जो इशू बेस्ड भी होते हैं। एक टाइम पे व्हेन आई वाज इन ARY तो हमने बहुत सारे इशू बेस्ड कर दिए थे, तो उसमें भी लोगों को प्रॉब्लम शुरू हो गई थी कि इतने सारे इशू बेस्ड ड्रामाज एक साथ कैसे कर दिए। सो लोग बोलते कुछ हैं और देखते कुछ हैं, स्पेशली जो व्यूअर्स हैं उनको हुक चाहिए होता है। तो इज इट सेफ टू से इट शुड बी इजी टू वॉच जो भी चीज़ है। तो इज इट सेफ टू से कि हमारी आवाम के लिए ये ड्रामे गिल्टी प्लेजर्स हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं कि जो डिफरेंट ड्रामे हैं ना, जिनको डिफरेंट देखना है, उनके पास ना बड़ी चॉइसेस आ गई हैं। नेटफ्लिक्स आ गया, सब कुछ आ गया, वो देख सकते हैं। जिनके पास टीवी का चैनल है ना, वो आपके घरों में जो मासियाँ हैं, आपकी बड़ी जो अम्माएँ हैं, दादियाँ हैं, वो बैठी हुई टीवी देख रही हैं। उनको आपके डिफरेंट चीज़ों को अभी तक डाइजेस्ट नहीं कर पा रही। तो हम देखें, मैं एक शॉप पे बैठा हुआ शॉपकीपर हूँ, उसने वही बेचना है जो आपको चाहिए। आज ग्रीन आया, डिफरेंट काम के साथ आया, और इसकी TRPs मतलब मैं जब देखता था तो 30 पे थी, डिफरेंट के बाद वो 15 पे आ गई। तो इसका मतलब लोग नहीं देखना चाह रहे ना, उन्होंने तो पूरा इतना डिफरेंट बना दिया, इतनी बड़ी कास्ट के साथ बना दिया। इसका मतलब लोगों को वही देखना लेकिन है। सर, जिनके पास इंटरनेशनल अप्रोच है चीज़ें देखने के लिए ना, तो उनको भी हमें अपने टीवी के लिए लाना चाहिए ना। वो हमारे ही लोग हैं जो नेटफ्लिक्स देखते हैं या अमेजोन देखते हैं। आहिस्ता आहिस्ता, जैसे रज़ा ने कहा कि आहिस्ता आहिस्ता मनूवर करना है। वी शुड नॉट टारगेट द मार्केट, जो आप कह रहे हैं कि मासियाँ हैं या जो घर में ख़वातीन हैं, उनसे भी हट के थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता करके बनाना चाहिए। आई थिंक TRP का भी बड़ा इसमें हाथ है। जो रेटिंग है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट रखती है। पता नहीं कहाँ से आती है रेटिंग, समझ नहीं आता। किसी से पूछो तुमने देखा था ड्रामा? नहीं। मैंने कहा रेटिंग कहाँ से आ रही है इसकी? तो ये एक सर मेरी तो सही आई थी, मेरी सही आई थी। आपके तो सही है। एक लाइन। नहीं, मैं आपके लिए ख़ास तौर पे तो नहीं बात कर रहा, एक जनरल बात कर रहा हूँ। TRP जो रेटिंग है, सर आपको तंग कर रहा हूँ। जो रेटिंग है उसने भी बड़ा किया हुआ है हिसाब किताब, कि समझ नहीं आ रहा जी उसकी
10.5, 12.15, मैंने कहा अच्छा ये कौन सी रेटिंग है। खैर अब ये चैनल किस तरह से सैटेलाइट पे ये करते हैं या ये केबल ऑपरेटर्स का काम है कि किसको इधर रखना है, आपने लिफाफा पहुंचा दिया तो आपको करीब रख दिया, आपका लिफाफा नहीं आया आपको 74 नंबर पर डाल दिया उसने, ढूंढते रहिए इसको कहाँ गया हो। तो यहाँ बहुत सारे प्रॉब्लम है, कोई एक नहीं है कि जिसको आप पॉइंट आउट कर सकें। टीआरपी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस चीज़ में कि ये जो आप कह रहे हैं कौन से मासिस के किसके लिए हम बना रहे हैं, मासियों के लिए बना रहे हैं, किसके लिए बना रहे हैं। अब बेगम मेरी मासियाँ जा रही होती मेरी, ओ ये सूट तो मैंने कल खुद लिया है जो पहनी हुई है। तो मासियाँ सब कुछ देख रही हैं भाई, वो भी उनके घरों में भी सब कुछ है। और जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि उनके पास एक लिमिटेड एक्सेस है कि वो जो एक केबल पे जो उनका चैनल आ रहा है उन्होंने वो देखना है। मेरे पास यूट्यूब भी है, मैं आराम से रात के 2 बजे यूट्यूब लगा के 4 एपिसोड देख लेता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनके पास ये एक्सेस नहीं है। तो ये जब इतना डिफरेंशिएट होगा, सारी चीज़ें अलग अलग होंगी, तो उसमें बातें भी बहुत सारी अलग अलग होंगी, जिसमें से हम जिस बातों में बहस कर रहे हैं, एक बात उठा रहे हैं 4 बातें और निकल आ रही हैं। ये सारी चीज़ें हैं इसमें। थैंक यू। आई मस्ट से कि अब टीवी चैनल्स को ऑब्वियसली ऐसे ऐसे मैनूवरिंग करनी पड़ेगी, जो हम ऑलरेडी कर रहे हैं। विद इन 5 years आप देखोगे कि ऑब्वियसली एक टीवी चैनल है और वो एक फैमिली टीवी चैनल है, तो उसको हर जॉनरा दिखाना है, हर तरह की चीज़ दिखानी है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, नेटफ्लिक्स आ गया है, लोगों को लोग उससे यूज्ड टू हो गए कि हमें सीरीज़ देखनी है और बैक टू बैक हमें 5 एपिसोड्स देखनी है। सो उनको भी हम नहीं रोकते, हम यूट्यूब के लिए रेडी रहते हैं कि जैसे ही एपिसोड ख़त्म होता है ऑन एयर हम यूट्यूब पे अपलोड कर देते हैं और वो वहाँ भी देख सकते हैं। और आपको उनके हिसाब से, बिल्कुल ज़माना चेंज हो गया है, चीज़ें चेंज हो गई हैं, आपको उनके हिसाब से अपनी स्क्रिप्ट्स में चेंजेस करनी पड़ेंगी, अपनी चीज़ें करनी पड़ेंगी। नॉट दैट कि आप वो मासियों को छोड़ दें, उनको भी आप दिखाएं, आप बिल्कुल उनको 7 बजे वाली चीज़ें दिखाएं जो अफोर्डेबल हैं, जो आप एक लॉन्ग सीरियल में दिखा सकते हैं। बट देयर आर शॉर्ट सीरियल्स जिसमें आप इस तरह की चीज़ें दिखाते हैं। फिर देयर आर सिटकॉम्स, कुछ लोग सिटकॉम्स देखना चाहते हैं। इट्स अ फैमिली चैनल। सो वो एक एज अ चैनल मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आपको हर जॉनरा दिखाना होता है और आपको अब स्मार्ट प्रोडक्शन और अच्छी प्रोडक्शंस करनी होंगी, वरना फिर आप आउट ऑफ द गेम हो जाएंगे और कुछ नहीं होगा। बिकॉज आपका व्यूअर नेटफ्लिक्स भी देख रहा है, यूट्यूब भी देख रहा है, प्राइम भी देख रहा है, एवरीथिंग, दे आर वॉचिंग एवरीथिंग। और अभी भी मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं कि अगर आप नेटफ्लिक्स से बात करेंगे तो वो आपको ये बोलते हैं कि हमें आप सीक्रेट गेम्स बना के नहीं दें, आप जिस चीज़ में बेस्ट हैं अपने पाकिस्तानी ड्रामा, आप वो ड्रामे हमें बना के दें, आप मेरे पास तुमो बना दें, आप हमें इस तरह के ड्रामे दें, आप हम सफ़र बना दें हमारे लिए, तो हम आपसे ले लेंगे। क्योंकि पाकिस्तान से जितने लोग नेटफ्लिक्स से मिल के आए हैं वो जाके बोलते हैं हम सीक्रेट गेम्स बना देते हैं। ये एक प्रॉब्लम है। और स्टूडेंट्स के साथ भी ये है कि ऑब्वियसली हम उनको इतनी सारी चीज़ें इंटरनेशनली दिखाते हैं, हम उनको दिखा रहे हैं इंटरनेशनल मूवीज़, इंग्लिश मूवीज़ दिखा रहे हैं, और फिर वो जब नेक्स्ट डे फील्ड पे आते हैं तो हम उनको बोलते हैं यार पाकिस्तानी ड्रामा बना दो। ये सारी चीज़ें अलग है, ड्रामा बनाना अलग है, फिल्म बनाना अलग है, सिटकॉम की एक अलग चीज़ें होती हैं, लॉन्ग सीरियल्स अलग बनते हैं, शॉर्ट फिल्म्स अलग बनती हैं। सो ये सारी चीज़ें डिफरेंट हैं और वो सारी चीज़ों की लर्निंग बहुत सारे सालों में होती है, वो एक गो में नहीं हो सकती। ख्वाब होते हैं देखने के लिए, उनमें जाकर मगर रहा ना करो। दादा साहब, ख्वाब होते हैं देखने के लिए, उनमें जाकर मगर रहा ना करो। ज़िंदगी में रहना चाहिए हमें। मैं तुम्हें इंग्लिश फिल्म में दिखाऊँ, मैं तुम्हें कुछ भी दिखाऊँ चीज़ें, रियलिटी तो आपके इर्द गिर्द है बिल्कुल। जब आप बाहर जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, मैं एक वक्त था कि जब हम बहुत काम कर रहे थे तो लोग हमसे कहते थे यार तुम एक ही दिन में 4 शूट कर लेते हो, कैसे कर लेते हो? तो मैं कहता हूँ भाई हम सुबह से शाम तक एक्टिंग ही तो कर रहे हैं, घर पे बीवी से निकल रहे हैं हमारा कुछ और रवैया है, बच्चों से मिल रहे हैं कुछ और रवैया है, ड्राइवर के साथ बैठे कुछ और रवैया है, ऑफिस में आ गए बॉस के साथ कुछ और हैं, सबऑर्डिनेट के साथ कुछ और हैं। तो शाम तक तो हम पता नहीं 6 रोल कर चुका मैं। तो मतलब ये नहीं, हम हकीकत की दुनिया में रहना चाहिए। मैं हमेशा ये कहता हूँ अगर मैंने स्ट्रगल की है इस फील्ड के अंदर तो अपने लिए की है। जैसे हमने कहा कि ये वो काम है कि जिसमें आप, अगर आपको आपने बैकअप होना तो जाए, आप कल नहीं जाए, आज ही चले जाएं, कल का इंतज़ार ना करें फिर, वरना फिर आप डटे रहें। आपने बना लिया कि जी ये मेरा रास्ता है, मुझे यहाँ पहुँचना है, ठीक है, और फिर वहाँ पहुँच के फिर एक और रास्ते निकल आते हैं। सर ये नहीं होता कि वो ख़त्म हो गया कहानी। आज 40 साल में काम करते हो गए मुझे,
और मुझे लगता है कि अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। एग्जैक्टली। तो पैवस्ता ने शजर से उम्मीदें बाहर रख, इंशाल्लाह अच्छा होगा। पॉजिटिव अप्रोच के साथ आए हम, जो भी आ रहे हैं, चाहे चैनल हो, चाहे राइटर हो, चाहे डायरेक्टर हो, चाहे प्रोड्यूसर हो, चाहे एक्टर हो, सब लोग पॉजिटिव आइए ना। अच्छा सोचिए, क्यों उल्टा सीधा बुरा सोचना, ये हो गया वो हो गया। अच्छा सोचिए, अच्छा होगा इंशाल्लाह। थैंक यू। एक आखिरी सवाल फिर आखिरी सवाल, क्योंकि रज़ा ने नेटफ्लिक्स का नाम लिया तो OTT प्लेटफॉर्म से ही लिंक सवाल है। जैसे उन्होंने बोला कि लोग जा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम सीक्रेट गेम्स बना के देते हैं, तो क्या कोई इतने डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, राइटर्स में से कोई ऐसा नहीं है जो कह रहा है हम सीक्रेट गेम नहीं बना के देंगे आपको, हम वही देंगे जो, क्योंकि अभी तक हमारी OTT रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल है। ये सीक्रेट गेम वगैरह जो है ना, जी जी जी। ये हमारी जो है ना, वो क्या कहते हैं उसको, बस ये समझ लीजिए कि हम बहुत ही बेशर्म लोग हैं। सही। दूसरे की बुराई हम बहुत आसानी से देखते हैं। दूसरे की बुराई को हम देखते हैं, हाँ देखें, अपनी बुराई देखने के बाद आस्तीन चढ़ा देते हैं, तेरी ऐसी ये क्या बात हुई। यानी मैं किसी की बहन को छेड़ दूं कोई बात नहीं, कोई मेरी बहन को छेड़े तो मैं तूफान खड़ा कर दूंगा। व्हाट इज दिस नॉनसेंस। आप वो सीक्रेट गेम देख रहे हैं, उसमें जो कुछ है वो आप देख रहे हैं। मैं यहाँ बनाने आता हूँ, हो क्या हो गया, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, ये क्या दिखा, कहाँ दिखाओगे, वो क्या दिख रहे थे तुम। तो ये जो नेटफ्लिक्स और ये इस तरह की चीज़ें हैं, इसकी एक्सेस जो है वो कहाँ है, ये हमें देखना है। ये आम पब्लिक में, मासिस के अंदर इसकी एक्सेस नहीं है इतनी सीक्रेट गेम की, तो इसको हम इससे मिलाएं, ये कुछ मुनासिब नहीं है। ठीक है, फ्लोर फॉर क्वेश्चंस इफ देयर आर क्वेश्चंस। जी जी प्लीज, ये माइक देना। अस्सलाम वालेकुम सर, अली मेरा आपसे सवाल है और सर रज़ा आपसे सवाल है। तो बीइंग ज़ाविस मीडिया स्टूडेंट, तो यहाँ पे भी जैसे आपने सर अर्ज किया कि काफ़ी मतलब हम लोग नए फेसेस ढूंढ रहे होते हैं, तो यहाँ पे भी काफ़ी थिएटर और डांस वगैरह काफ़ी टैलेंट आता है ज़ाविस से, जो इंडस्ट्री में भी कहीं ना कहीं जा रहा है। तो सब हम लोग यहाँ से प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे होते हैं, तो क्यों ना आप लोग की जो कंपनीज हैं उसके थ्रू हम लोग के लिए कोई ऑडिशन वगैरह हैं। सर आप हमें टाइम दें, पिक अ डे, आप हमें टाइम दें, हम अपने डायरेक्टर, हम अपने कैमरामैन सब लेके आएंगे। आप हमें टाइम दें, यहाँ पे फारूक भाई, हम सब आएंगे, करेंगे, हमें तो चाहिए, हमारी ज़रूरत है। पिक अ डे। मैं तो इंस्टीट्यूट भी ऐसा चाहता हूँ यहाँ पे कि जिसकी एडमिशन का भी ऑडिशन हो। अरे टेढ़े मेढ़े भर्ती कर लिए पैसे लेने के चक्कर में, या पैसे जमा कराओ, पैसे जमा कराओ, और बाद में कहते नहीं बेटा आप नहीं कर सकते, नहीं बेटा आप नहीं। और भाई पहले ही बोल देते हैं, क्यों पैसे और टाइम जाया कर रहे हैं। एडमिशन का भी ऑडिशन होना चाहिए। जी भाई आप ही तो थे, बोले आपका सवाल किससे? सर आपसे, मुझसे? चल जी सर। सर दिस इज कामरान जावेद, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर फ्रॉम बैम डिजिटल चैनल। सर शब्बीर जान साहब आपसे सवाल भी है एंड यमुना जैदी आपसे भी सवाल है, दोनों सवाल एक साथ पूछ लूँगा मैं। शब्बीर जान साहब मेरा एक सवाल ये है कि सर जांगलूस जब सीरियल आया, मैं उस वक्त स्कूल में पढ़ता था, लेकिन इतना मुझे याद है कि सीरियल बैन हो गया था। जिन वजूहात के बिना पर वो सीरियल बैन हुआ, क्या उन वजूहात को आज ओवरकम कर रहा है प्राइवेट मीडिया? अच्छा जी, दूसरा सवाल यमुना मैडम आपसे है कि जी मीरब का रोल आपने किया तेरे बिन में, बहुत ही खुद सर लड़की थी, किसी की बात नहीं सुनती थी। आप अपने अभी नहीं सुनती है। तो आप अपने करैक्टर को डिफेंड कैसे करेंगे? देखिए, जहाँ तक आपने जांगलूस की बात की, वो एक पॉलिटिकल इशू था। इसका एक पायलट बना था 79 में, 79 या 77 में कुछ ऐसे इसका एक पायलट बना था पहले, और उसमें जो दो मरकज़ी किरदार अदा किए थे, सलीम नासिर मरहूम साहब और तलत हुसैन साहब ने, ये लाली और रहीम दाद के रोल इन्होंने किए थे उस वक्त। 77 या मुझे एग्जैक्ट ईयर याद नहीं है, लेकिन ऐसे ही था। मैंने वो पायलट देखा भी था जब उन्होंने हमें बुलाया था। तो जब ये स्टार्ट हुआ है तो वो बात है 1989-88 की। तो वो थोड़ा उम्र रसीदा हो गए थे, तलत साहब भी और सलीम नासिर साहब भी। तो फिर उन्होंने मुझे और एम वारसी साहब को उस रोल के लिए कास्ट किया।
ये बेनज़ीर साहबा की गवर्नमेंट आई थी 88 की, उसमें शौकत सिद्दीकी साहब का काफ़ी उनका वाबस्तगी पीपल्स पार्टी से रही है हमेशा। तो वो जैसे ही आए हैं तो ये पहले भी बन रहा था और नहीं बन सका, तो ज़िया साहब ने हिला जुला दिया था सारा कुछ। तो उन्होंने कहा चलो जी अब आ गए, फ़ौरन इनका ड्रामा स्टार्ट किया जाए। तो वो स्टार्ट भी हुआ हुकूमत के कहने पे और बंद भी हुआ हुकूमत के कहने पे। उसमें कोई भी यहाँ की या कोई चैनल की या किसी और की, क्योंकि सरकारी टीवी था, सरकार ने कहा चलाओ, सरकार ने कहा बंद करो, भले। अच्छा, मुझे डिफेंड करने की ज़रूरत ही नहीं है। मैंने बहुत से मुख्तलिफ किरदार प्ले किए हैं थ्रू आउट माई लाइफ, जिससे बहुत सारे लोगों ने एग्री किया, बहुत से लोगों ने डिसएग्री किया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इट्स द मोस्ट वॉच्ड ड्रामा ऑफ पाकिस्तान इंडस्ट्री। सो मुझे उसको डिफेंड करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर ना होता तो फिर लोग ना देखते तो फिर मैं कहती कि हाँ क्यों किया और ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो उसका जो जवाब है वो मेरी व्यूअरशिप और मेरे व्यूअर्स पे है। थैंक यू। Assalamu alaikum everyone. My name is Burak Shabbir. I'm a journalist, but I also teach here at Zabist as visiting faculty. पहले तो I'm so glad to have a very very diverse panel. I think आप सभी अपने अपने area of expertise से जो बात कर रहे हैं, that makes so much sense. एक छोटा सा comment है and then a question, and whoever thinks के उनको जवाब अगर उसका relevant वो देना चाहते हैं. Comment, observation on the basis of क्योंकि मैं cultural lifestyle journalist हूँ and been following and writing on TV dramas and stuff. आई थिंक ये जो डॉक्टर अली काज़मी ने बात की और रज़ा ने जो बात की, ग्रीन की जो हम बात कर रहे थे कि एक चेंज ऑफ पेस एंड एक वेव चेंज करने की कोशिश की और बहुत मीनिंगफुल और इस तरह के स्क्रिप्ट्स लाने की, नॉट नेसेसरली सोशल इश्यूज़ बट बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी। एंड जो आप बैठ के देखें तो एक साथ आप चाहेंगे कि एक साथ देख के और अच्छा सा मैसेज ओरिएंटेड एंड वेरी हार्श एंड रियलिटी एंड एवरीथिंग। बट मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ अली साहब की बात से कि मैंने भी ऑब्जर्व किया ऑन ऑब्वियसली ऑन अ जनरल ऑब्जर्वेशन नॉट स्टैट्स वाइज कि ये उनकी रेटिंग्स जो है वो नीचे आती गई। एंड देन आई ऑल्सो सॉ दैट द चैनल ऑल्सो फेल प्रे टू द क्लीशे उसमें कुछ हद तक, क्योंकि उन्हें भी चलाना है अपना चैनल। तो मुझे ये लगता है कि मे बी वी नीड टू कम टुगेदर एज अ इंडस्ट्री जहाँ पे सारे चैनल्स अगर ये ठान लेते हैं कि सिर्फ, आई एम नॉट सेइंग कि सिर्फ ये इशू बेस्ड एंड स्टफ, बट अ मिक्स ऑफ दोज, जो मासी को भी अच्छा लग रहा है, एक दुकानदार जो पढ़ा लिखा नहीं है उसे भी अच्छा लग रहा है, और हम आप जैसे पढ़े लिखे लोग, क्योंकि बहुत नीश सर्कल ने कहा कि ग्रीन बहुत अच्छा काम कर रहा है, बट मुझे पता है कि वो नीश ही था। सो अगर क्या होता है कि फिर यू अगेन टर्न टू हम टीवी, जियो, ARY के वही वाले जो अच्छे लग रहे हैं सास बहू वाले, तो फिर ग्रीन के कुछ ड्रामे देख के बस अब इतनी सीरियसनेस बर्दाश्त नहीं हो रही। सो मे बी वी कुड कम टुगेदर एज ए इंडस्ट्री। सेकेंडली क्वेश्चन ये है कि रज़ा ने जो बात की कि हम पूरा वो करते हैं, एक खाका बनता है, डायरेक्टर होता है, कास्ट होती है, चीज़ें होती हैं, कौन किस में फिट करेगा, एंड अ कॉम्बिनेशन ऑफ नोन एंड नॉट सो नोन एक्टर्स या न्यू एक्टर्स। जिस तरह चर्न आउट हो रहे हैं सैकड़ों की तादाद में सालाना ड्रामे, जैसे फैक्ट्री का वर्ड यूज़ किया शब्बीर साहब ने, आपको लगता है कि एक एक ड्रामे के साथ ये जस्टिस हो पा रहा है और ये कंटेंट और क्राफ्ट और क्रिएटिविटी इज़ बीइंग एबल टू केप्ट, लाइक कैन यू कीप इट इंटैक्ट विद ऑल ऑफ दिस? 100 से ज़्यादा ही ड्रामे बनते हैं साल में, दैट आई नो फॉर श्योर। ये सवाल था, जवाब था। अच्छा, इसका एक देखें, चैनल्स तो इस पे कुछ नहीं करेंगे। मेरा ये मानना है कि जब तक हुकूमत नहीं करेगी, आज के दौर में सबसे ज़्यादा जो सफ़र कर रहा है मेरे हिसाब से वो आपका बच्चा है। एक जब PTV आता था तो बच्चे का एक स्लॉट होता था। आज मुझे बताएं कि बच्चों का स्लॉट किस चैनल पे चल रहा है, हम उसके लिए बात क्यों नहीं कर रहे? हमारे भी घर में बच्चे हैं, कहाँ हैं कार्टून्स, कहाँ हैं वो चीज़ें? इस बात पे जब तक हुकूमत नहीं करेगी कि हर चैनल को आधा घंटा ये चलाना है, आधा घंटा इस्लामी जब तक ऊपर हुकूमत की तरफ से डंडा नहीं होगा कोई कुछ नहीं करेगा। अस्सलाम वालेकुम। मेरा एक सवाल ये है कि जब भी हम टीवी की बात करते हैं तो हम अपने माजी में ही रहते हैं। जब भी हमारा कभी भी टीवी से रिलेटेड कन्वर्सेशन होता है तो हम अपने पुराने ड्रामों को याद करते हैं। मौजूदा दौर के अंदर कोई इस तरह का कंटेंट के एतबार से ऐसा कोई ड्रामा क्यों नहीं निकल रहा है कि हम उसके बारे में बात की जाए? हम क्यों पीछे बार बार पलट के देख रहे हैं? और अगर हम पीछे पलट के देख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हम मौजूदा दौर में हम कुछ गलत कर रहे हैं और शायद हमें उसका इतराक भी है। लेकिन फिर वो लोग जो
चेंज करना चाहते हैं और वो पुराने ड्रामों जैसे कंटेंट बनाना चाहते हैं, फिर अगर उनको ये कहा जाए कि भाई आप अपने ख्वाबों को छोड़ दो या आप जो आपके जो ड्रीम्स हैं या जो आपके जो चीज़ें हैं उनको पूरा नहीं करो, तो इस तरह का अगर होगा तो जो नई आने वाली नस्ल है वो किस तरीके से एक अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस करेगी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हो सकता है आज से 5 साल बाद 10 साल बाद हम अपने आने वाली नस्ल को किसी पैनल में ये बोल रहे हो कि भाई ड्रीम के बारे में छोड़ दो, ख्वाब देखना छोड़ दो। ऐसा कुछ नहीं है, ड्रीम देखते रहें, अगर ड्रीम टूट जाए उस पर खफा ना हो, लेकिन कीप स्ट्रगलिंग, कीप ड्रीमिंग। अच्छा, आपका जो सवाल है एक छोटा सा जवाब दूंगी। ह्यूमन साइकी है, हमेशा पास्ट याद करते हैं, अपनी तस्वीरें भी पुरानी याद करेंगे, अपना वक्त भी पुराना याद करेंगे, प्रेजेंट भले अच्छा हो उसको अपने फ्यूचर में बाद में जाके याद करेंगे कि वो अच्छा था। मैं डिफेंड नहीं कर रही आज के कंटेंट को, बहुत बेहतरी की ज़रूरत है इस वक्त हमारे कंटेंट को। कोई ड्रामा ऐसा नहीं, लेटली मैंने नहीं देखा कि मैं पूरे एपिसोड्स खुद बैठ के देखे हूँ, लेकिन स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि 20 ड्रामों में से एक फिर भी बेहतर होता है, और उसी एक को हम पुराने ज़माने में भी उस एक को याद करते थे। वहाँ पर भी तब भी बहुत ड्रामे बनते थे, उसमें भी कुछ एक आधा ड्रामा होता था जो बहुत पजीराई जिसको मिलती थी। अच्छा, दूसरा ये आपकी बात का छोटा सा 2-3 ढाई लाइनों में सर 2.25 लाइन में कर लेता हूँ। इस दफा 2 है। वो बड़े लोग की एक सेइंग थी, बहुत पुरानी चली आ रही है, पीछे मुड़ के देखोगे तो पत्थर के हो जाओगे। वो क्या था कि मतलब अपने माजी में रहोगे भाई, तो फिर आगे की फिक्र कहाँ होगी आपको। तो अगर पीछे मुड़ोगे तो पत्थर के हो जाओगे, उसी दुनिया में रहोगे। आप अपने माजी को अपने एक्सपीरियंस के तौर पे अपने साथ लें और मूव ऑन। अच्छा, मैं उस दौर में 13 एपिसोड बनते थे कहानी, अब मिनिमम 26। अच्छा, उस दौर में प्रॉपर रिहर्सल होती थी, राइटर एंड तक होता था। कोई अगर कैरेक्टर हिट हो रहा है तो राइटर को पता होता था और वो वहीं पे सेट पे उसको बढ़ा देता था, कोई हिट नहीं हो रहा तो उसको कम कर लेता था। जैसे इसमें मैंने लिखा, एक ही सीन लिखा था कि यूके यानी कि उमरकोट, तो अच्छा लगा, मैंने फौरन उसके सीन्स बढ़ा दिया। 5-6 एपिसोड के बाद तो आप 13 एपिसोड रिहर्सल, राइटर की बाउंडिंग, तो अगर वो कर दें तो आपको वही ड्रामे मिल जाएंगे। अच्छा सर, मैं एक क्वेश्चन मेरा और है कि मेरा कैरेक्टर इनके ड्रामे में मेरा भी था, छोटा सा कैरेक्टर, तो वो इन्होंने मुझसे मतलब कहा था कि यार ये कैरेक्टर है, कर ले। तो अभी जैसे इन्होंने कहा ना कि इन्होंने एक भले का बनाया और वो अच्छा हुआ, 5-6 ज़्यादा और लिखवा दिया, तो मेरा बहुत बुरा था कि वो 3 एपिसोड में ख़त्म कर दिया उन्होंने। अच्छा, मुझे तो ख़त्म कर दिया, मेरा बेटा चला रहे जो मेरे बेटे का रोल है उसमें, जिसको वो अगवा कर लेता है, वो उसके साथ चल रहा है, अब्बा को गायब कर दिया उन्होंने। सर 2 सीन थे, मैंने 5-6 कर दिए थे। अच्छा सर, मैं एक क्वेश्चन और ऐड करना चाहूँगा, फिर उसके बाद मैं दूसरे किसी को भी दे दूँगा माइक। सर, मेरा सवाल ये है कि हम जिन कहानियों की बात करते हैं, ख़ास करके हमारा जो देखने वाला तबका है, और आपने स्पेसिफिकली मेंशन किया कि SEC C क्लास हमारी कहानी देख रही है, मासियाँ हमारी कहानी देख रही हैं, सोशल मतलब जो SEC की क्लास जो है वो देख रही है, तो वो कहानियाँ लिखने वाले डिफेंस के बंगलों में कैसे लिख रहे हैं वो कहानियाँ कि वो उनसे रिलेट कर सकें। तो वो जो कहानियाँ हमारी हैं वही लोग क्यों नहीं लिख रहे, या उनको मौका क्यों नहीं दिया जा रहा कि जिनकी वो अपनी कहानी है, जिनको वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मेरी जान, मैंने सिर्फ ये कहा था कि वो जो चैनल आपका जो रिमोट है वो उन लोगों के पास है जो डिफेंस में रह रहे हैं, उनके पास नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मैंने सिर्फ इतनी सी बात की थी कि वो जो चैनल देख रहे हैं ना, वो उनके क्या उनका हक नहीं है, वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है, उनको हमने नहीं दिखाना कुछ भी, उनको एंटरटेन नहीं करना, तो बता दें। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा क्वेश्चन आप सबसे है कि जैसे नॉट टू कंपेयर हेयर बट जैसे नेटफ्लिक्स इंडिया स्काई रॉकेटिंग एंड वहाँ की सीरीज़ हर जॉनरा पे बनती हैं, हर तरह की बनती हैं, तो लाइक हाउ लॉन्ग विल इट टेक आवर ऑडियंस टू रीच टू दैट लेवल एंड एक्सप्लोर अदर जॉनराज अदर देन दिस रोमांस एंड स्टफ, सो लाइक हाउ विल वी मेक आवर ऑडियंसेस मीडिया लिटरेट, दैट्स माई क्वेश्चन। आप लोग ही जवाब देंगे कि कब। हम तैयार हैं, जब आप चेंज हो जाएं हम बनाने के लिए तैयार हैं।
सर मेरा सवाल है भैया ड्रामा में होती है, लेंस से लेकर कलर ग्रेडिंग एवरीथिंग। आप आए तो सही, विजिट तो करें बिग बैंग, यू विल सी एवरीथिंग एवरीथिंग। ये सारी चीज़ें होती हैं ड्रामा में। एंड आई थिंक यमुना ये नहीं बोल रही थी, यमुना ये बोल रही थी कभी कभी ऑब्वियसली वो डायरेक्टर अपने जोन में होता है, प्रोडक्शन बहुत तेज़ी से हो रही होती है, तो कुछ कंटिन्यूटीज़ मिस हो जाती हैं। सो वो उसकी बात कर रही थी कि मम्मा वो वाली मिस्टेक्स पकड़ लेती हैं। आई थिंक और कुछ बात नहीं कर रही थी, क्योंकि कलर ग्रेडिंग डिवेंची पे अब सारी चीज़ें कर रहे हैं हम, कन्वर्ट सब कुछ हो रहा है। डॉक्टर अली से मैं ख़ास एक रिक्वेस्ट करूँगा कि 20-25 मिनट की एक ऐसी बनाएं चीज़ जिसमें ये कहाँ क्या होता है शुरू से लेकर आखिर तक, हम कैसे लेके चलते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, क्या क्या हर्डल्स होती हैं, ये सब कुछ कैसे पता चलेगा लोगों को। आपने तो बैठा, आपको 45-40 मिनट एक ड्रामा देख के छुट्टी, वो एक आदमी के पूरे 15 दिन लग गए उस एपिसोड में, 8 महीने एक एपिसोड में। हम जस्ट 15 दिन 10 दिन 12 दिन लग रहे हैं एक एपिसोड के लिए, तो वो इतना आसान नहीं है। आग का दरिया है, डूब के जाना है जानू। सर मेरा एक सवाल है सर। अच्छा सर, मेरा सवाल शब्बीर सर आपसे है कि क्या कहते हैं, ऐसे आपका शौकत सिद्दीकी साहब का लिखा हुआ जंगलूस आपने अदा किया, तो हमारे पुराने जितने भी ड्रामे थे तो उनके अंदर चाहे लिमिटेड एपिसोड 13 एपिसोड में कहानियाँ ख़त्म हो जाती थी। कंपैरेटिव जो आज के ड्रामे होते हैं हम लोग उनको ड्रैग बहुत करते हैं, कहानियाँ एक टाइम पे आके खिंच चुकी होती हैं, आपको पता चल जाता है कहानी खिंच रही है, मगर हम फिर भी एपिसोड बाय एपिसोड चलाते रहते हैं। और हाँ, पैसे वाली बात भी है, मगर क्या कहते हैं, फिर आप ये भी ऐसे अली साहब ने कहा कि आवाम वो देखना चाह रही है, मगर हम लोग अगर उनको अलग चीज़ दिखाएंगे, एक कहानी को उसके वक्त पे ख़त्म कर देंगे तो वो अच्छी चीज़ भी हो जाएगी। अभी मैंने वैसे आधा जवाब तो आपको दे दिया इशारों में। हर किसी के साथ यही सूरत हाल है, उसकी कोशिश होती है कि अगर कोई कंटेंट अच्छा जा रहा है, अच्छा हो रहा है, तो उसको थोड़ा सा लिंगर ऑन करके कुछ 8-10 एपिसोड और बढ़ जाएं, अच्छे हो जाएं, तो थोड़े से पैसे बढ़ जाएंगे, कुछ अश्क सुई हो जाएगी हमारी भी, क्योंकि हर प्रोडक्शन में इतना कोई नफ़ा नहीं हो रहा होता कि प्रोडक्शन हाउस हर प्रोडक्शन का नफ़ा उठा रहा होता है। कोई ऐसा प्रोडक्ट आती है कि उसके अंदर वो कहता है चल यार वो पिछले आंसू साफ हो जाएंगे, थोड़े से इसको कर लेते हैं ऐसा। तो ये कोई ऐसी अचंभे वाली बात नहीं है। इस पे देखें, कभी कभी ना ज़रूरत भी, कोविड के ज़माने में हमारा एक ड्रामा था जो 65 एपिसोड का था, नंद के नाम से था। तो बड़े घर चले हैं, उस नंद ने बड़े घर चलाए हैं। हमने लोगों को जॉब से नहीं निकाला, बस नंद चला के हमने उनको अपने पास रखा ताकि उनका भी घर चले। कोविड का भी ज़माना था, तो कभी कभी ना कभी मजबूरी भी होती है, और आप लोग देख रहे होते हैं तभी चल रहा होता है। नहीं सवाल इससे पहले कि हम ये कंक्लूड करें, एक लफ्ज़ कॉइन हुआ है आज मासी, तो लेट मी क्लैरिफाई दैट इज़ फॉर द वर्किंग क्लास। तो ये कोई ऐसा इसको मत समझ, हाँ नहीं मतलब जनरली वहाँ वो चेंज हो गया। एक बात बताऊँ, हम जाएँ, आप जब देखें 4 लोग रहते हैं या 3 लोग रहते हैं 1000 गज के बंगले में, जी, और वहाँ 10 नौकर होते हैं, जी, और वो नौकर हैं इसी बात पे कि उनको टीवी लगा हुआ देखने के लिए। नहीं सर, वो चाइनीज़ विस्पर हो गया, वहाँ जाते ही लफ्ज़ बदल गया है, तो मैंने कहा वो हाँ वो मासिस से मासी हो गया, तो मैंने कहा इसको क्लैरिफाई कर दिया जाए। जी बिल्कुल। अच्छा, इससे पहले कि हम ये कंक्लूड करें, अगर आपने बस आपका एक्सपीरियंस जानना चाहते हैं बेसिकली कि आपने कभी टीवी चैनल या ऑन सेट, इफ़ यू एक्सपीरियंस्ड पीपल फ्रॉम ज़ैबिस्ट इन एनी रोल, तो कुछ आपका एक्सपीरियंस अगर आप शेयर करना चाहें किसी भी कैपेसिटी में, आपने अगर उनके साथ काम किया हो तो आपका उनके साथ एक्सपीरियंस अच्छा था या बहुत अच्छा था? मेरे पास तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मेरे पास इसीलिए मैं ज़ैबिस्ट से एक्टर चाह रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास राइटर्स, डायरेक्टर्स, यहाँ के उस्ताद भी हैं, यहाँ के शागिर्द भी रहे हैं, तो आप अब भी पढ़ा रहे हैं, लेकिन मेरे साथ हैं, अली बैठा हुआ है सामने, और वो मेरे इदारे का एक हिस्सा है, बहुत बड़ा हिस्सा है। तो इसीलिए मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे मैं तो बड़ा सेटिस्फाई हूँ ज़ैबिस्ट से, इसलिए चाह रहा हूँ कि यहाँ के लोग आएँ और एक्टिंग करें।
मेरा जो शोबा है, जो जिस शोबे में मैं हूँ अदाकारी के, मैं उस हवाले से कुछ चीज़ें आपको अगर शेयर कर सकता हूँ तो ज़रूर करूँगा मैं, कि ये जो अदाकारी है ये वही कोई सिखाने वाला काम नहीं है, ये एहसास है एक। मतलब मैं इस अदाकारी को मोहब्बत की तरह लेता हूँ। वो एक शायर ने कहा है कि मोहब्बत एक ऐसा जज्बा है जिसे महसूस तो कर सकते हैं, बतला नहीं सकते। तो अदाकारी भी यही है, मैं आपको बतला नहीं सकता अदाकारी क्या है। अदाकारी आप महसूस करेंगे, आपके अंदर एक कॉमन सेंस विच इज़ नॉट वेरी कॉमन, नॉर्मल है तो से भी कॉमन, लेकिन इतनी कॉमन नहीं होती। तो हमारे काम में ये कॉमन सेंस बड़ी काउंट करती है, अदाकारी में ख़ास तौर पे। आपको किस वक्त यहाँ के हालात ऐसे होते हैं कि कुछ पता नहीं होता, थोड़ी सीन चलते सीन में क्या चीज़ हो जाती है, तो उसको आप कैसे मैनेज करेंगे। तो अदाकारी करने के लिए आपके महसूसात का स्ट्रॉन्ग होना, और आपको अपने इर्द गिर्द के माहौल के अंदर अगर आप इन्वॉल्व होते हैं, उसको ऑब्ज़र्व करते हैं, लोगों को देखते हैं, लोग कैसा बिहेव करते हैं, आप अगर देखेंगे तो आपको एक एक आदमी एक कैरेक्टर नज़र आएगा चलता हुआ। अगर आप थोड़ा भी उसको तसल्ली के साथ और थोड़ा सा गौर करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं बहुत सारे कैरेक्टर नज़र आएंगे। तो हम वही करते हैं कि वो देखते हैं माशरे में कोई ऐसा किरदार नज़र आए, हम कोशिश करते हैं यार इस तरह से कोई परफॉर्म कर दें। उसको तो किसी ने नहीं देखा, मुझे देख लेंगे। थैंक यू। मेरा एक ड्रामा था बख्तावर, उसके एडी हसनैन थे, गालिबन वो ज़ेबिस यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए, एंड ही वाज एक्सट्रीमली शार्प, ही वाज एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट। उन्होंने 8 महीने में ख़त्म होने वाला ड्रामा हमारा 3.5 months में कवर कर लिया था। इट वाज एन 80% आउटडोर ड्रामा, एंड वो ही वाज अ ट्रीट ऑन द सेट में। हमारे सबका काम बहुत आसान किया हुआ था उन्होंने। अच्छा, एक लाइन यहाँ पे 3-4 नहीं, मैं पर नहीं कह रहा। अच्छा, एक तो ये कि सर के सही कहा कि एक्टिंग तो सिखाई नहीं जाती, अंदर मौजूद होती है। तो एक काम करना चाहिए आप लोगों के, जैसे खुद ही ऑडिशन लें और रेफ़र कर दें कि ये 4-5 जो है ना हमारे बेस्ट रहे हैं, तो हम उन्हीं को देखें जो कि आप रेफ़र किए हुए हों ईमानदारी से। एक ही लाइन बस। थैंक यू। अच्छा, आई मस्ट से कि कभी डिसहार्ट नहीं हो। हमारी फील्ड जो है वो बहुत रूथलेस फील्ड है। हमें एवरी डे एवरी टाइम अपने आप को प्रूव करना होता है एज एन एक्टर हो। इनका आज एक ड्रामा हिट होगा, नेक्स्ट ड्रामा जब आ रहा होगा तो लोग बोलेंगे यार उसमें अच्छा काम किया, इसमें नहीं किया। सो वी हैव टू प्रूव आवर सेल्व्स एवरी डे। तो आप कभी डिसहार्ट ना हो अपनी चीज़ों से, और अगर आप में पैशन है और चीज़ें, वो हमेशा होता ये था कि पहले भी मैं 3-3 दिन तक ऑफिस में होता था व्हेन आई वाज इन इंडस विजन, और मैं एडिट भी खुद कर रहा होता था, डायरेक्शन भी खुद कर रहा होता था। उसमें मुझे लोग बोलते थे आप रात के 3 बजे आते हैं, सुबह 7 बजे वापस कैसे आ जाते हैं। सो इट्स ऑलवेज योर पैशन जो आपको सुबह उठाता है। ना आपकी अम्मी उठा सकती हैं, ना आपको कोई अलार्म उठा सकता है। इफ़ यू आर पैशनेट अबाउट समथिंग, आप खुद उठेंगे, खुद काम करेंगे। आई वुड से कि अगर आपको मैं बोलूँ कल आपको पेरिस जाना है और 4 बजे की फ़्लाइट है, तो आप सब 3 बजे से उठ के बैठ जाएंगे कि ओह माय गॉड यार हमारे वेकेशन स्टार्ट हो रहे हैं। सो इसी तरह अपने पैशन को कंटिन्यू रखें एंड डिसहार्ट नहीं होइएगा, बिकॉज ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत रूथलेस फील्ड है, और जहाँ पे आप ऊपर जा रहे होंगे 10 लोग आपको नीचे खींच रहे होंगे। सो यू हैव टू फाइट विद एवरीवन एंड गो टू द टॉप। थैंक यू। We would like to ask our panelists to stay seated. We would like to invite our chief guest on stage, Dr. Talabi Nia, to present the panelists with a token of appreciation. Firstly, we will be giving a token of appreciation to Farooq Rin.
And next we will be giving another token of appreciation to Shabbir Jan. Next, we will be giving a token of appreciation to Dr. Ali Kazmi. And next, we will be giving a token of appreciation to Shabbir Jan. And next we will be giving a token of appreciation to Yumna Zaidi. Next token of appreciation goes to Raza Musavi. Next token of appreciation will go to Sir Hussain Kamil. तालियां दो. Next we would like to invite Sir Saklan Zaidi on stage to present a token of appreciation to our chief guest.